गुरु गोविंद गुरु म्हारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु म्हारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु म्हारी पूजा गुरु गोविंद गुरु म्हारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु म्हारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की साथ संगत की प्यार से बोलना। गुरु म्हारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु म्हारी पूजा गुरु गोविंद गुरु म्हारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। गुरु हरि पूजा गुरु गोविंद गुरु म्हारा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। सबके दिल
मत पूरे कर्म कर बंदे, मत पूरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुँह दिखलाएगा, क्या मुँह दिखलाएगा। मत पूरे कर्म कर बंदे, मत पूरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुँह दिखलाएगा, क्या मुँह दिखलाएगा। हरे सुंदरे प्राणी मत कर मनमानी, हरे सुंदरे प्राणी मत कर मनमानी। जब कर कर्मों का होगा वहाँ हिसाब रे, वहाँ हिसाब रे। तेरे कर्मों की अब जब जब खोलेगा किताब रे, खोलेगा किताब रे। सोच ली सोच ले कल, सोच ली सोच ले कल, तुझे क्या बतलाएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुँह दिखलाएगा। हरे सुंदरे प्राणी मत कर मनमानी, हरे सुंदरे प्राणी मत कर मनमानी। नहीं कोई किसी का साथी अगले संसार में, अगले संसार में। क्यों फंसा हुआ ये जग के झूठे व्यवहार में, झूठे व्यवहार में। क्यों आंखें मूंद के कब तक, क्यों आंखें मूंद के कब तक तू सड़ेगा रहेगा। भगवान के आगे अपना क्या मुँह दिखलाएगा। हरे सुंदरे प्राणी मत कर मनमानी, हरे सुंदरे प्राणी मत कर मनमानी। तेरी ये कंचन काया एक दिन जल जाएगी, एक दिन जल जाएगी। ये दौलत और ये शोहरत तेरे काम न आएगी, तेरे काम न आएगी। तेरे कर्मों का ये लेखा, तेरे कर्मों का ये लेखा तेरे साथ ही जाएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुँह दिखलाएगा। मत पूरे कर्म कर बंदे, मत पूरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान के आगे अपना क्या मुँह दिखलाएगा, क्या मुँह दिखलाएगा। हरे सुंदरे प्राणी मत कर मनमानी, हरे सुंदरे प्राणी मत कर मनमानी। प्यारी सास भगत जी प्रेम और सत्कार से कहना। all came to me. Gandhi, are you attending Lady Samadham? I said yes. Then they said, then your name is also already mentioned. Then was a Udhir starts. There was no topic what to say.
5 days I thought what to say. Then the journey starts from Vekar to Nagore. It was a speech. It was only a speech to deliver. But after some moments, all the Sat Sangat, all the life came from Sat Sangat made me recall that actually it is not a speech. It is not the words or the sentences to deliver to a gathering, but it is a heart-to-heart conversation. It was a heart-to-heart conversation because we are not a gathering. But we are a family, and our heart, and the head of the family is Sadhguru Mataji, and as the word says, Mataji ke Raj mein to Raj kar raha. Just like that, my heart says, Mataji ke Raj mein to Manavta Raj kar rahi. Sat Sangat, we are a family. We live in different areas, different culture, different cities, and it is a small family gathering. And now, at this moment, I am not giving a speech. I am opening my heart out. I am pouring my heart out, and I am emptying my heart and my mind to fulfill it with divine blessing of dear Sadhguru Mataji. And we can understand it with a small example. A child lives in a hostel and comes home to feel at home, to feel comfort, and to tell all the good and bad happened with him in hostel. And before going back, he receives strength from all the family, the strength, the love, and the blessing to go back and manage with this world out from their family. And just like that, we are a family and we have gathered here to receive blessings from Mataji and pour out our hearts, all the good and bad, what happened with us, to tell her that what happened with us. And thanks to Sadhguru Mataji to make us a member of this family, this divinity, and today we can feel this divinity and feel we are all a human family, and this divine family is all the blessings of the Sadguru. The family is all the humans with all the colors accepted. No color, no caste, no creed is accepted here. No matter if you are black or white in color, what is your status in society? Because when we talk about family, we know so many royal families in India, just like that Rajasthan, the great royal Rathod Vansh, the great royal Jaipur Vansh. We notice that all the royal families in Rajasthan, he says that royalty runs in their veins. When a royal person needs to go somewhere, he looks extra care how he sits, how he walks, how he talks. Overall, at a small glimpse, you can see that this must be a royal blood. Just like that, Sadhguru has gave us some royal signs, some attributes, just like that humanity, love, politeness, and empathy. That's all the word recognized with all the royal attributes, and all the word can point out us that this is Nandari. The love, the empathy we show, he must be a Nandari. And today all the world need this humanity. As Vivek Chaudhary said, that please Mother bless us with all the attributes, love, humanity, that the saints of Vivek Chaudhary come through today. As these lines says, today every soul is yearning for peace. Let understanding never cease. In other's shoes we will take a walk. With empathy we will learn to talk. So let us strive for near and far, for peace and free, love our guiding star, in a world where chaos often reigns. Let's be the peace.
श्रवण करेंगे और इसके बाद 12वीं बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी, आज नागौर आकर के बहुत ही खुशी का अनुभव कर रही है दासी, और आज सद्गुरु की कृपा से नारी शक्ति को यहाँ संगत रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। जहाँ समाज में या फिर दुनियावी रूप में या अपने वर्क प्लेस पर नारी को जहाँ एक अपनी नाम बनाने के लिए या अपनी पोजीशन को रियलाइज करने के लिए एक नारी को अपना स्थान मिल जाए, उसकी जहाँ एक बहुत लंबी जंग चल रही है दुनिया में कि इस नाम की कद्र खत्म होती गई, तो सद्गुरु की तरफ से ये जागरूकता फिर से ये लहर समय समय पर हम संत निरंकारी मिशन के रूप में ये देख रहे हैं कि नारी को बराबर का स्थान देना। और समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जहाँ स्वयं एक नारी के रूप में बागडोर को संभाले हुए हैं, देश विदेश में जा करके इस सत्य का प्रचार सुंदर रूप से किए जा रहे हैं। तो जो हमारे एनर्जी के सोर्स हैं वो भी एक नारी की शक्ति से ही प्रचार प्रसार मिशन का भी चल रहा है। तो ये बहुत खुशनसीबी है कि हम ऐसे मिशन के अनुयायी हैं जहाँ पर नारी को बराबर हिस्सा मिला, एक बराबर स्थान मिला। इस ब्रह्म ज्ञान को पाने के बाद ही कोई नर और नारी का भेद खत्म कर सकता है। अगर बड़ी बड़ी बातें और स्पीच रूप में बोल दें और यहाँ पर नारेबाजी चालू कर दें, या नारी भी ये सोचे कि अब से मैं भी जीन्स पैंट पहन के ऑफिस जाऊंगी, तो बातें उस तरीके से खत्म नहीं की जाती। अगर टोन, अगर अंदाज गुरु वाला होगा और अगर जानकारी इस निरंकार की होगी, तो नर और नारी का भेद निश्चित रूप से हमारे मंद बुद्धि से, हमारी छोटी सोच से चला जाएगा। जब इस दिल की गहराई में ये प्रभु परमात्मा निरंकार राज करेगा, जब इस दिल की गहराई में हम इस निरंकार को बिठाएंगे, तब जाकर के एक ही नजर से हम इस पूरी कायनात को देख पाएंगे। तो यही अरदास, यही प्रार्थना, जहाँ हमारे परिवारों के ऊपर ये टाइटल लगा हुआ है कि ये निरंकारी परिवार है, तो समाज के सामने भी हमें एग्जाम्पल बनना है कि हमें नारी का बहुत रेस्पेक्ट करके, एक नारी की बॉडी की क्वालिटी देखी जाए तो वो जन्म देने वाली होती है। एक नारी के अंदर पूरा यूनिवर्स होता है, और ये क्वालिटी एक माँ के रूप में नारी को ही वरदान है किसी को जन्म देने का। तो वो पूजनीय जन्म है, वो एक पूजनीय शरीर है, तो वो हमारे घरों में भी पूजी जाए। और जहाँ पे अभी बात हुई मधुर स्वभाव की, तो एंटाइटल होते हैं कि अक्सर नारी कहीं कलेश या फिर लड़ाई का एक नाम जुड़ जाता है, या गॉसिप का नाम जुड़ जाता है कि जहाँ दो लेडीज मिलके बैठेगी तो जरूर गॉसिप कर रही होंगी। सद्गुरु ने वो छाप और वो पहचान हमारी बदली है। हम एक नारी से भी पहले एक गुरसिख है, तो वो गरिमा रूप हम हमारे जीवन में ला पाए। जहाँ पर भी बैठे निरंकार की चर्चा करके ही उठे, हमें को किसी भी प्रकार की गॉसिप का हिस्सा नहीं बनना। साथ संगत जी प्यार से कहना, जो आकाश में वेद के बादल मोर नाचने लगता है, अवतार गुरु का दर्शन करके गुरसिख मन हर्षाता है। शासनगत जब हम इस प्रकार से सतगुरु के शासनगत आशीर्वाद को लेने के लिए शासनगत इस रूप में यहाँ एकत्रित हुए हैं, शासनगत सभी के मन आज प्रोत्साहित है, प्रफुल्लित है। जैसे गिनती की थी बीकानेर से आई बच्चे हैं, ये 12वीं जी और कुंजन जी को हम गीत के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, और इसके बाद समूची पार्टी नाटक के लिए शासनगत को तैयार रहेंगे।
जीवन में आने के बाद स्वयं ही पीछे पीछे चले आएंगे, इनकी तो गारंटी है जी। सांसारिक सुखों के साथ साथ ये वास्तविक सुख सद्गुरु ने जो हमारी झोली में डाले हैं वो है आत्मिक सुख। और आत्मिक सुख अगर मेरे जीवन में आ जाए तो मेरा जीवन खुशियों से भर जाता है। हाँ बहन जी, बात तो आपकी सही है, किंतु ये हर किसी के जीवन में नहीं हो पाता है। तन तो किसी भी तरह सेवा सत्संग सुमिरन से जुड़ ही जाता है, पर ये मन हर समय उपस्थित हो ये जरूरी तो नहीं। मन तो कहीं ना कहीं भटक ही जाता है। क्यों बहन जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये मन आसानी से कहीं नहीं टिकता, लेकिन सद्गुरु ने हमें इसका भी तो उपाय बताया है। अगर हम अपने मन को इस स्थिर निरंकार से जोड़ लें तो हमारा मन भी स्थिर हो जाएगा, और ये केवल सुमिरन से ही संभव है। हम जितना ज्यादा से ज्यादा सुमिरन करेंगे हमारा मन स्थिर होगा और ये मन भक्ति में भी लगेगा। पर कभी-कभी तो सुमिरन के बाद भी मन शांत नहीं हो पाता है। मन की उथल-पुथल बरकरार रहती है और अशांत मन के कारण बाहरी वातावरण भी अशांत और टूटा ही बन ही जाता है। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर हम सद्गुरु के कहे अनुसार सुमिरन करें और हमारे जीवन में आनंद ना हो। बहन, आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आप दासी से शेयर कर सकती हैं। सद्गुरु की कृपा से हम इसका भी कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेंगे। हाँ बहन जी, समस्या तो है, किंतु दासी को समझ नहीं आ रहा कि इसका समाधान कैसे हो। समस्या? कैसी समस्या? मैं काफी दिनों से बहुत परेशान हूँ। मैं सत्संग के समय पर जा रही हूँ और आदेशानुसार सेवा भी कर रही हूँ, और जैसे ही ध्यान बनता है सुमिरन भी करती हूँ, पर मेरी भक्ति में कहाँ कमी रह गई कि मेरे जीवन में अभी भी परेशानियाँ जारी हैं। कमी? कमी तो कहीं ना कहीं हम में ही है, वरना ये निरंकार तो पूर्ण है, भरपूर है, और इन्होंने हम सबको भी भरपूर दिया है। अब हमें ये देखना है कि कमी आखिर रही कहाँ। जो जीवन मेरा खुशियों से भरा होना था वो परेशानियों से घिर गया है। बहन, आप आपके जीवन की उन कुछ पिछले क्षणों को याद करें जहाँ आपको ऐसा लगे कि यहाँ मुझसे कमी रही हो। हाँ, उस दिन जय निरंकार जी। बेटा थोड़ा जल्दी उठा करो, सेहत के लिए अच्छा होता है। बेटा एक गिलास पानी पिला दो, मेरे पैरों में दर्द है। लो उठे नहीं, इनके भाषण शुरू हो गए। इनके तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते। जैसे मेरे उठने का ही इंतजार कर रहे थे, जैसे मैं नहीं उठती तो ये प्यासे ही बैठे रहते। हाँ रुको, लाती हूँ अभी आपका पानी। महापुरुषों, आओ जी महापुरुषों, बैठो जी। क्या लेंगी? चाय बना
उनके दिए वचनों के अनुसार मैं अपना जीवन जी सकूं, तब मेरा जीवन आनंद से महक उठेगा। क्योंकि ज्ञान के ऊपर रहकर कायम जीवन सुंदर बन जाता है।
खुदा के बंदे हैं, हम खुदा के बंदे हैं, सबकी भलाई चाहिए। हम खुदा के बंदे हैं, सबकी भलाई चाहिए। दूसरे के घर में क्या है, इसकी ना चर्चा चाहिए। हम खुदा के बंदे हैं, हम खुदा के बंदे हैं, सबकी भलाई चाहिए। दूसरे के घर में क्या है, इसकी ना चर्चा चाहिए। रहमतें उनकी हैं, रहमतें उनकी है हम पर, हर घड़ी हर पल रहे। रहमतें उनकी है हम पर, हर घड़ी हर पल रहे। सर सदा दरबार में सजदे में झुकना चाहिए। सर सदा दरबार में सजदे में झुकना चाहिए। जिंदगी तू कब तलक, जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी। जिंदगी तू कब तलक दर दर फिराएगी। हमें बन सकूं हर पल तेरी ये रहनुमाई चाहिए। जो छुपा कर हो, जो छुपा कर हो, वो भक्ति हो नहीं सकती कभी। जो छुपा कर हो, वो भक्ति हो नहीं सकती कभी। इश्क है रब से तो इसका इजहार होना चाहिए। इश्क है रब से तो इसका इजहार होना चाहिए। लोग दरिया है तो, लोग दरिया है तो फिर इस वक्त हम खतरे में हैं। लोग दरिया है तो फिर इस वक्त हम
कृपा से आज सत्संग का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबकी माता जी का बहुत बहुत शुक्राना जो इन शास्त्र में हमें लाकर के सत्संग में दिखाया, क्योंकि कहा भी गया कि सत्संग सेवा स्मरण की हो भक्ति का श्रृंगार है, भक्ति जीवन भक्ति धर्म से इनके आधार के द्वारा इस सत्संग में निश्चित की भक्ति शुरू होती है। सत्संग जो करते चले जाते हैं तो शासन की हमारा मन ईश्वर को आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ता चला जाता है। पुस्तक के जीवन में विवेक आ जाता है तो वो शासन में सत्संग में आकर के बैठते हैं। यहाँ सबको बहुत लोग की वाणी सुनने को मिलती है, गुरु की महिमा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और जैसे जैसे शास्त्र में उस वाणी को सुनते चले जाते हैं, हमारे मन का विवेक में वो जागृत होता चला जाता है
और हमें एहसास होता है कि ये ईश्वर निराकार परमात्मा हमारे हम सब जो है हमने इसके साथ जुड़कर के शास्त्रों के अपने जीवन में वो कमाई करनी है जो शास्त्र में सदगुरु ने बताया है। ज्ञान देने के पश्चात में सदगुरु ने यही बताया कि नित्य प्रति हमने सत्संग करना है, सेवा करनी है और शास्त्र में सिमरन को अपने जीवन का आधार बनाना है। सत्संग में आ जाते हैं तो शास्त्र में सिमरन अपने आप हो जाता है, क्योंकि सत्संग में बैठे होते हैं तो सत्संग में सेवा भी हो जाती है। चल करके आते हैं, महात्मा कृपा करते हैं और सत्संग में जैसा अवसर प्रदान करते हैं अपने साथ लेकर के आ जाते हैं। तो यहाँ बैठते हैं तो सत्संग में हमारी तन से मन से जो सेवा होती है वो भी प्रदान हो जाती है। और सत्संग में जब ऐसी सेवा प्रदान होती है तो मन का सत्संग को अभिमान जो है वो उससे का खत्म होता चला जाता है, क्योंकि वो हमेशा जो है इसी का थैंकफुल रहता है, इसी का शुक्राना करता है कि सदगुरु की कृपा से इस सत्संग की ऐसा सत्संग हो पाए। और इसके पश्चात सत्संग इसका मन जो है सत्संग में बैठे बैठे इस निरंकार को परमात्मा के साथ जुड़ता है, क्योंकि यह हमें निरंकार को परमात्मा ने हमें बताया है। संतों के बीच में बैठने को सत्संग की इसका एहसास आता है। इसके एहसास में सत्संग जब हम सिमरन करते चले जाते हैं तो सत्संग के हमारा मन जो है वो शांति को प्राप्त करता है, सुकून को प्राप्त होता है, ऊंचाइयों की तरफ चला जाता है। जो मन शास्त्र में संसार में है गिरावट की तरफ होता है, कलह क्लेश भी होता है, वो सत्संग तो गुरु के साथ जुड़ जाता है, इस निरंकार के साथ जुड़ जाता है। इस ईश्वर की कृपा से सत्संग में लोगों जो है शांति में आ जाता है, सुकून में आ जाता है। कृपा के साथ सदगुरु की सिखलाइयाँ जो हम अपने जीवन में अगर अपना लेते हैं तो पल पल हमारा जन्म संतुष्टि में बीतता है, सुकून में बीतता है। और आज हमारा सदगुरु साबित हमसे यही है कि हमने जो है अपने जीवन में सुकून लाना है। इस सुकून के साथ जो है इस निरंकार के साथ जुड़ेंगे, जिसमें हमारे जीवन में सहज रूप में चला जाएगा। कृपा के साथ गुरु के दर्शन को मानते अपना जीवन जो है गुरु को समर्पित भाव से जीते हुए व्यतीत करें। साथ तो जीवन का श्रृंगार बने यही भावना के साथ में नाचने वाले व्यक्ति जोधपुर से पधारे हैं सूरज एंड पार्टी को भी आशीर्वाद ले रहे हैं। इनके बाद में लाडू से बहन सुमन कंवर जी वो भी तैयार है।
परिवार को चलाती है, जो शिक्षा देती है और साथ में वो रिश्ता निभाती है, वो परिवार में रहते हुए भी वो भक्ति और गृहस्थी का पालना दोनों बराबर रखती है। क्योंकि महिला ये कि बच्चों की जो पहली गुरु होती है माता, जो अपने बच्चों को अच्छा संस्कार देती है, वो उन्हें सद्मार्ग पे चलाती है और आगे बढ़ाती है। जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो साथ संगति देश भी हमारा आगे बढ़ेगा। साथ संगति राजनीति की बात नहीं है, लेकिन आज हमारे ऐसी एक महिला थी जो मोदी जी को जन्म दिया, तो आज एक हमारे भारत देश का विकास कर रही है, आगे बढ़ा रही है। तो वही आज हमारी माता सुदीक्षा की महाराज, उनसे लेकर सत्संगी राजमाता की कुलवंत कौर जी भी हमने ये शिक्षा दी, सतगुरु माता सवेंद्र कौर जी ने भी हमें ये शिक्षा दी, जो इस संसार में रहने की कला भी बताई और समाज के साथ रहने की भी कला बताई। तो इसीलिए आज ये महिला समागम रखा गया है। और अब सत्संगी कहते हैं कि लोग जैसे कागज की लेखी, मैं कहूँ आंगन की देखी। यहाँ पे यहाँ रहने की शिक्षा भी दी जाती है और परलोक भी संवारा जाता है, और हमारा ये घर परिवार भी स्वर्ग जैसा बन जाता है। तो आओ आज सतगुरु माता जी में यही बनाना चाहती हैं, क्योंकि आज हम देख ही रहे हैं रिश्ते नाते सब खत्म हो गए हैं। सास बहू का रिश्ता खत्म, नंद भाभी का खत्म, देवर जेठानी का खत्म। तो यही माता जी को चिंता लगी है कि ये रिश्ता हमारा कायम रहे। जब पहले हम लेडीज सुधरेगी तभी हमारा रिश्ता सुधरेगा। क्यों महिला ही है जो घर को स्वर्ग बना देती है, और महिला ही है जो नरक भी बना सकती है। आज आप देख ही रहे हैं। तो आओ आज हमें पूर्ण गुरु मिले हैं, अच्छी शिक्षा मिली है, आप जैसे संत महात्मा मिला है, तो आपकी जब हम संग करेंगे तो हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी। तो आओ सत्संगी फिर शिक्षा यहाँ की है, वो सतगुरु माता जी कहते हैं कि जब ये मनुष्य का शरीर उत्तम मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनि काट करके जीव आया है, तो इसको आकर के इस प्रभु परमात्मा की जानकारी भी करनी है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं मिलेगा तो हमें शिक्षा भी नहीं मिलेगी। जब प्रभु को हम अनशन देखेंगे, वो सदा रहने वाला परमात्मा जो आज सत जुगाद सत है भी सत, नानक होशी भी सत, वो परमात्मा हम अपना आप नहीं देख सकते। कितनी भी तपस्या कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, क्योंकि पहले गुरु होते थे 12-12 वर्ष तक अपने शिष्य से तपस्या करवाते, बाद में वो बोलते तुम्हें ज्ञान मिलेगा। जब तक वो चले ही जाते वो ज्ञान माँ का वहीं रह जाता। इसलिए आज सतगुरु माता जी हमें तुरंत का सौदा करती है, कहते हैं आओ शीश झुकाओ परमात्मा को पाओ। तो लोगों को भरम है कि इतना जल्दी प्रभु को कैसे देख सकते। तो आप पार्वती मंगल पढ़ के देखें, भगवान शिव जी कहते हैं कि छिन्मय सभी मिले भगवाना, उमा ये मरण काहू दी जाना। बोलते एक क्षण में परमात्मा मिल सकता है। कौन सा परमात्मा? जो मीराबाई को मिला। आप सबको पता है मीराबाई जब कल्पना का परमात्मा देखती थी तो हरदम वो रोती रहती थी, कभी भी उनको सुकून नहीं मिला। वो घबराती रहती थी, कृष्ण की मूर्ति हाथ में रखती थी, जब मंदिर जाती फिर भी रोती। तो जब उन्हें शत्रु मिला, पूर्ण शत्रु हृदास जी, तो उन्हें प्रभु परमात्मा की जानकारी दी। और साक्षी ये दासी भी बहुत जगह भटकी थी, प्रभु परमात्मा के लिए सोचती कि वही राम होगा जो धनुषधारी है, वही भगवान होगा जो कृष्ण मुरारी है। और साक्षी वो महापुरुष आए थे, हमें शिक्षा देके चले गए। लेकिन जो सदा रहने वाला परमात्मा जिसका नाश नहीं होता, आप गीता में सुनते हैं, रोज आप भागवत सुनने जाते हैं, साक्षी गीता में क्या लिखा था कि हे अर्जुन नैनम स्नति शस्त्राणि नैनम देहति महाकाल चैनल प्रयदिता पुण्य शोषिति मारुता। ना तो मुझे अग्नि जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है, ना मुझे शस्त्र काट सकता, न मुझे हवा उड़ा सकती। ऐसा प्रभु परमात्मा आज सतगुरु माता जी हमें दिखा रहे हैं। तो हम इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, भक्ति हम कर रहे हैं कि भरपूर है भक्ति, लेकिन जब तक हम ईश्वर को नहीं देखेंगे तो हमारी भक्ति पूर्ण नहीं होगी। तो आओ हम आज ही आए, आज ही प्रभु को पाए कि सतगुरु हर सुख का सामान लिए बैठे हैं, हर दिल का अभिमान लिए बैठे हैं। इसके चरणों में शीश झुका के देखो, ये मुट्ठी में भगवान लिए बैठे हैं। एक क्षण में प्रभु परमात्मा को दिखा सकते हैं। वो परमात्मा कि जाको खोजत जोगी हारे, सुंदर पावे तारा, सो स्वामी में निकट जाना रुद्र से नारा।
मैं तो इस रूप रंग से न्यारा परमात्मा को देख करके धन्य हो गई। कहती हूँ हे प्रभु, मुझे ऐसा पूर्ण गुरु नहीं मिलता तो हमें ये परमात्मा कभी नहीं मिलता, हमें ये शिक्षा कभी नहीं मिलती। आज सतगुरु माता की जगह जगह बाल संगत रखाते हैं, महिला समागम रखाते हैं, शास्त्र के कितने बड़े बड़े समागम होते हैं। तो किस लिए? क्योंकि हमारी ये जो भारत भूमि है हमेशा संतों की भूमि रही है और ये सदा शांति चाहते हैं और वो प्रेम और शांति का पैगाम देने के लिए सतगुरु आते हैं। तो आओ सत्संग की दासी भी लेट हो गई थी, आप सब महात्मा का सुन नहीं पाई, दासी को क्षमा करना, बीकानेर से आई थी दासी, और आपकी कृपा करना कि जो बोलते हैं वो पहले हमारे कर्मों में आ जाए, क्योंकि हमने ऐसे ईश्वर को देखा है जिसका नाश नहीं होता, सदा रहने वाला, वो गुरु ही दिखा सकता है। तो ज्ञान अंदर गुरु दिया, ज्ञान अंदर नाश नहीं, कृपा सत्य ले दिया, नानक मन प्रकाश। इस प्रकाश को हम देख करके शरण होंगे तब काम बढ़ेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत समझाया, लेकिन जब तक शरण नहीं ले तो भगवान ने ये कहा सर्व धर्माने परितर्माने कम शरणम धन तुए सर्व काले मोक्षामि। अर्जुन जब तक तू मेरी शरण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। बोला तू देख मैं तुझे विराट स्वरूप दिखाता हूँ, कोई आज विराट स्वरूप माता सुदीक्षा जी दिखा रही है, कौन सा विराट स्वरूप साथ संगति, वही जो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को दिखाया था कि जब बहुत धन की हानि बाढ़े असुर अभिमानी करे अग्नि की गाड़ी बढ़ी सिद्ध विद्य जैनु सुधनी, तब तक प्रभु धरे विविध शरीरा हरे कृपा निधि सदन पीरा। तो कहते हैं प्रभु मुझे दिख नहीं रहा है, मैं क्या देखूं? तो 11वां अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि चरम चक्षु है पास तुम्हारे, देख सके नहीं रूप हमारे, दिव्य दृष्टि लोक मूर्ति तुम्हारा, अद्भुत देखो रूप तुम्हारा। और साथ संगत जी कहते हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के मुंह से आदम खुदा नहीं। साथ संगत एक शब्द खुदा से और बोलेगी कि दुनिया को उससे खुदा मानती हूँ, तब तब उसकी दुआ मानती हूँ। बंधु को साथी खुदा से मिला दे, उस आदमी को खुदा मानती हूँ। इसलिए हमारे लिए सतगुरु माता की खुदा है। और साथ संगत आशीर्वाद देना, प्यार से